So hello everyone, am I audible? And can you see my screen? My screen is visible to you? Okay, fine. So last day Harita ma'am has requested me to take her classes. She is not. I think she has informed you. She will be not available in this week. So in her behalf, I'll take today's class. So our linear block code has completed in your ITC. I think I have completed one day I had done with Shannon Funnel and Huffman coding. I think she has also completed that. So linear block code is completed in ITC. So in ITC linear block code, have you done? So please tell. So are you done with linear block codes? Huffman complete हुआ है. So the next topic is I think linear block code. So that is very important. So if you can see, one or two questions are always there, and they are descriptive type question. So they will be like 10 or 12 marks. So I have taught in the IT branch also. So it is very interesting topic, and you will enjoy it. So because two problem will be there. So that is a major topic, and everybody has their on way to solve the linear block codes. So I'll tell my way how to solve it, how to deal with this problem. So uh, I'm pretty sure that after this, you will not find any difficulties in solving the problem in the block codes. So let me discuss the linear block codes some. So after this, I will solve one problem. So all have patience and see how we are dealing with the linear block codes. So basically, linear block codes. So in ITC, there are two type of coding is there. One is channel coding and one is source coding. I think this has been taught to you. So in source coding, what we have to do, we have to add parity bit. We have to add parity bit. So I have already in this, what you have to do, you have to remove in channel coding, you have to remove interference or noise. So, and the example of source coding is block codes, that is linear block codes. I'm talking about block codes. Then and you can see here the example of this is you can see that convolution code, and one more example is cyclic code. So these are all three topics which is a major part of ITC. So if you can see, so ITC is very interesting subject. I think madam is teaching you, so you might be enjoying. So we will deal with block code. So actually, what is source coding? So in source coding, we add some extra number of bits to transmit our signal. So that why we add some extra number of bit, so that so so I'll tell you. Let So what we do in block codes. So suppose n comma k is there, n comma k is there, and it is 7 comma 3. So if it is 7 comma 3, so n is total number of bits. So what is n? N here is total number of bits, that is 7. K, which is message bit, that is 3. And n minus k is parity bit. 7 minus 3 is parity bit. So this is extra number of bit. Extra number of bit. So in block codes, what we are doing, we are adding extra number of bits to transmit our signal. So if in the question it is given n comma c, so total number of code word is 7, message bit is 3, only 3 message bits are there, and 7 minus 3, 4 is the extra number of bit. We are calling it as parity bit or additional bit. So these bits do not have any kind of information. हमारा इंफॉर्मेशन किस में है, सिर्फ ये 3 वाले में, इसी को हम लोग मैसेज बिट बोलते हैं या इंफॉर्मेशन सोर्स बोलेंगे. इसमें ही हमारा इंफॉर्मेशन है, और बाकी क्या है, पैरिटी है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट ऐड किए हम लोग ये 4 बिट ट्रांसमिट करने के लिए, ताकि वहां पे एरर ना हो. मतलब ऐसा अगर हमारे पास एक सेट ऑफ पेपर है और हमको सेंड करना है, रिसीव ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या किए, उस एक पेपर में एक और ऐड कर दिए कंटेंट, ताकि जो रिसीवर रिसीव करेगा उसको पता रहेगा कि ये कंटेंट इस पेज में ये है, ये इस पेज में है. उससे क्या होगा, एरर होने का चांसेस नहीं होगा, उसको सब पता रहेगा अंदर. तो 4 बिट क्या है, कंटेंट हो गया. इंफॉर्मेशन किस में है, 3 बिट में ही है. सो आई टेक 1 और 3
2. So let's see here. So some theoretical part is there, then after that I will solve one problem, and in that problem you will see how easily we are doing, or how means जो मैं मेथड बताऊंगा वो आपको सब अलग लगेगा, और आप वो बाकी लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, आपको दिक्कत होगा। मेरा मेथड आप देखो कितना सिंपल हो रहा है। थोड़ा सा आप हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला होता है कोड लेंथ, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। अगर 7,3 है तो कोड लेंथ कितना है, n इक्वल टू 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट। फिर आता है, इसको हम लोग कोड लेंथ बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो एन इज 7। अगर कोई भी पेपर में 8,4 दिया हो या 8,3 दिया हो तो कोड लेंथ कितना हो गया, एन इक्वल टू 8। एन इक्वल टू 8 मीन्स टोटल नंबर ऑफ बिट कितना है इस 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 चैनल में। दूसरा क्या हो गया, कोड एफिशिएंसी। Second one is code efficiency. So we are representing it by this. So code efficiency equal to message bit upon total number of code length. Means अगर 7,3 है तो 3/7, मतलब ये 3 हमारा क्या है, मैसेज बिट है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोड लेंथ, तो वी आर डिनोटिंग इट एज कोड एफिशिएंसी। थर्ड इज कोड वेट। कोड वेट, अगर ये C1 दिया हुआ है 1101 और C2 दिया हुआ है 0011, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से कोड C1 का कोड एफिशिएंट कोड वेट कितना है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट, जितना भी नॉन जीरो कंपोनेंट होंगे उतना ही कोड एफिशिएंसी होगा। तो कितना नॉन जीरो कंपोनेंट है, 1 2 3, कोड वेट कितना होगा, कोड वेट ऑफ C1 इक्वल टू 3। यहाँ पे कोड वेट ऑफ C2 कितना हो जाएगा, 2। नॉन जीरो कंपोनेंट, नॉन जीरो कंपोनेंट कौन कौन से, 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3। WC1 इक्वल टू 3, WC2 इक्वल टू 2। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि ये कोड वर्ड है, इसमें बताइए कि कोड वेट कितना है, तो कितना हो जाएगा, कोड वेट इक्वल टू 4। So this is all about code weight. Now, so please see the theoretical part. After this, we will go to a problem. Then you will see how we are solving the problem. और एक प्रॉब्लम हमेशा आता है लीनियर ब्लॉक कोड से, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई थॉट यू टू टीच यू, बिकॉज अगर आप ये समझ जाओगे तो आप 10 से 15 नंबर आईटीसी में ऐसे ही ले आओगे। सो लास्ट फोर्थ वन इज हैमिंग डिस्टेंस। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट हैमिंग डिस्टेंस। सो हैमिंग डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ bits by which two code word differs, by which two code word differs। मतलब अगर एक C1 है 1101, C2 है 1011, तो अगर डिफर मतलब क्या है, ये दोनों सेम हो गए तो कुछ नहीं हुआ, ये दोनों अलग हो गए तो 1, फिर ये दोनों अलग हो गए तो 1, 1 + 1 2। तो हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 2। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे निकाल दो, इन दोनों का एक्सओर ऑपरेशन ले लो। एक्सओर ऑपरेशन आपको आता है, 1 1 क्या होता है, जी अगर सेम हो गए तो 0, डिफरेंट हो गए तो 1, डिफरेंट हो गए तो 1, सेम हो गए तो 0। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 + 1 + 1 + 0 इक्वल टू 2। सो कोड हेमिंग डिस्टेंस इक्वल टू 2। ये क्लियर है आपको कैसे निकाला, मैं हेमिंग डिस्टेंस कैसे निकाला। दो बिट्स एक दूसरे से कैसे डिफर है, या तो ऐसे देख लो आप, या तो दोनों का एक्सओर ऑपरेशन करके सबको ऐड कर दो। एक्सओर ऑपरेशन क्या होता है, अगर 0 और 0 एक्सओर 0 इक्वल टू 0, 0 एक्सओर 1 इक्वल टू 1, 1 एक्सओर 0 इक्वल टू 1, 1 एक्सओर 1 इक्वल टू 0। अगर सेम बिट है तो 0, डिफरेंट बिट है तो 1, डिफरेंट बिट है तो 1, सेम बिट है तो 0। सो इज दिस क्लियर हाउ आई हैव कैलकुलेटेड हेमिंग डिस्टेंस। शुड आई मूव टू द अदर सेक्शन? Okay, so please be patient. I'm really telling you, you will like it when I will solve a problem on this. और आपको ऐसा मेथड कोई बताएगा भी नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप जब आप मैडम बताएंगे तो उनसे पहले ही आप सॉल्व कर दोगे। तो अब आता है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। Minimum having distance. So see, because when you will go in the interview of electronics, so when you will tell that you are good in ITC, so they will basically ask the question regarding coding। तो जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं उनको जॉब जल्दी इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनको कोडिंग आता है। तो आपको अगर कोडिंग आएगा तो आपका डिमांड ज्यादा होगा। मिनिमम हैविंग डिस्टेंस देखिए क्या होगा, अगर ये C1 दिया हुआ है 1101, C2 दिया हुआ है 1010, C3 दिया हुआ है 1000। So first of all you will find minimum
हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, तो क्या क्या अगर इन दोनों के बीच में निकाले हैमिंग डिस्टेंस तो क्या क्या डिफर है? 1 0, ये दोनों अलग हैं तो 1, ये दोनों भी अलग हैं तो 1, ये दोनों भी अलग हैं तो 1, तो 3 आ गया, मतलब C1 C2 का हैमिंग डिस्टेंस 3 आ गया। फिर अब वैसे ही अगर C1 C3 का निकाले, अगर यहाँ DC1 DC3 निकाले तो कितना आएगा? C1 1, ये डिफरेंट 1, ये 0 0 सेम हो गया, फिर ये 1 1 + 1 2, वैसे 2 आ गया। वैसे ही C2 C3 का निकालते हैं, अगर C2 C3 का, तो देखोगे C2 और C3 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 0 0 है, ये 1 डिफरेंस है बस, तो 1 आ गया। इन तीनों में मिनिमम क्या है? 3 to 1 में 1, सो मिनिमम हैविंग डिस्टेंस बिटवीन 3 इज इक्वल टू 1। सो इज दिस क्लियर हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम हैविंग डिस्टेंस? या फिर से बताऊंगा? कुछ नहीं करना है, दोनों के इन दोनों के बीच में हैविंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, फिर इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए, उन तीनों में जो मिनिमम होगा वही आपका मिनिमम हैविंग डिस्टेंस होगा। तो इज दिस क्लियर? या फिर से बताऊं मैं? आप थोड़ा जल्दी बताओ क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? बिकॉज व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल बी रिक्वायर्ड हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम हैविंग डिस्टेंस। ओके, सो आई एम मूविंग टू द अदर पार्ट। तो देखिए, चौथा होता है एरर डिटेक्शन निकालना, कितना एरर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन इक्वल टू होता है, एस से डिनोट करते हैं, जो अभी हम लोग डी मिन निकाले, मिनिमम हैविंग डिस्टेंस -1, तो ये होता है एरर डिटेक्शन का फॉर्मूला। फिर सेकंड होता है कितना एरर करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट एरर करेक्शन, दिस इज व्हाट एरर, हाउ मेनी एरर यू कैन डिटेक्ट इन ए कोड। तो दिस इज द फॉर्मूला डी मिन -1। एरर करेक्शन का फॉर्मूला होता है डी मिन -1/2 व्हेन d min is odd, और होता है d min -2/2 when d min is even। so when d min is odd, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, d min -1/2 when d min is even, d min -2/2। so this is error detection, this by this formula we can detect the error, by this formula we can correct the error। अगर कितना एरर डिटेक्ट कर सकते हैं किसी कोड में, कितना एरर करेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करना मतलब, अगर हम कोड कोई ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यही रिसीवर को रिसीव हो रहा है कि नहीं, 1101 रिसीव हो रहा है कि नहीं। अगर रिसीवर को ये रिसीव होगा 1001, मतलब यहाँ पे एरर है, उसी को हमको निकालना है कि ये एरर हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नाउ अदर थिंग इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ साइक्लिक कोड। एनकोडिंग ब्लॉक कोड, कैसे हम कोड को भेजते हैं। लास्ट थिंग इज एनकोडिंग एंड कोई भी, जो भी कोडवर्ड लिखा होता है हमारा लीनियर ब्लॉक कोड, वो इस फॉर्म में होता है, G = I/P। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके बाद से पैरिटी बिट होता है, पैरिटी हो गया, इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, G = P/I। पहले पैरिटी होगा, तीन कोई किसी बिट, कितने बिट का, फिर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा 0 1 0 0 0 1। सो ये एनकोडिंग, ये ट्रांसमिट करने के काम में आता है। फिर रिसीव करने में क्या यूज करते हैं हम लोग, डिकोडिंग में क्या यूज करते हैं। सो so for decoding what you will use, if the signal is given like this, G = I/P। one second, हेलो, हाँ, कैन यू कॉल मी आफ्टर सम टाइम? So can you see my screen? Is this visible? So can you are you can you see my screen? यस सर। ओके, सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये एनकोडिंग होता है जनरेटर मैट्रिक्स, या तो I/P के फॉर्म में दिया होगा, आपको देखना है, पहले आइडेंटिटी होगा 1 0 0 0 1 0, उसके बाद पैरिटी होगा, या तो ये फॉर्म होगा, एक सेकंड में ऐड कर दूं अवंतिका काला को, या सेकंड फॉर्म ये दिया होगा पैरिटी इनटू आइडेंटिटी, पहले पैरिटी फिर आइडेंटिटी दिया होगा।
ये एनकोडिंग का पार्ट हो गया। अब डिकोड कैसे करते हैं कि कोड सही मिला है कि नहीं। अगर ऐसे हम लोग भेज रहे जी इक्वल टू आई टू पी, तो उसको डिकोड करने का तरीका है, सबसे पहले एच निकालते हैं, एच मैट्रिक्स। तो एच मैट्रिक्स क्या होता है, पहले पी का ट्रांसपोज लेंगे इनटू आई, अगर ये फॉर्म होगा तो। अगर दूसरा फॉर्म होगा, अगर ऐसे लिखा होगा जी इक्वल टू पी इज टू आई, फिर क्या करेंगे, ये उसके अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आई इज टू पी ट्रांसपोज, ये हो गया, ये डिकोडिंग का पार्ट हो गया, दिस इज डिकोडिंग। अगर जी मैट्रिक्स ऐसे लिखा होगा तो पहले एच मैट्रिक्स निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके इनटू आई। अगर जी मैट्रिक्स ऐसे लिखा होगा, इसका ट्रांसपोज लेके आई। अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में निकालते हैं सिंड्रोम, एस इक्वल टू रिसीव कोडवर्ड इनटू एच ट्रांसपोज, जो एच निकाल रहा है उसका ट्रांसपोज इनटू कर देना है बस। अगर एस की वैल्यू 0 निकल गई तो नो एरर, अगर एस की वैल्यू कुछ निकल गई तो एरर रहेगा। ये हो गया आपका ब्लॉक कोड खत्म। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आप देखिए कितना मजा आएगा इसमें। सो दिस वन और टू प्रॉब्लम विल बी बेसिकली देयर। सो हाउ आई एम कैलकुलेटिंग, इस पे ध्यान रखिए, बस सिंड्रोम लास्ट में निकालते हैं हम लोग। सो हाउ विल कैलकुलेट सिंड्रोम, एस इक्वल टू आर इंटू एच ट्रांसपोज, जो एच यहाँ से निकाल रहे हैं। और अगर एस की वैल्यू 0 हो गई तो नो एरर, एस की वैल्यू कुछ भी निकली तो एरर है, फिर उस एरर को हम करेक्ट करेंगे। तो आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, सो लेट्स सी हाउ वी आर मूविंग टू द, हाउ वी आर मूविंग टू सॉल्व इट। So please be with me. So this problem will be of 15 marks when it will come into your paper. और यहीं से स्टार्ट होता है ब्लॉक कोड। सो अगर एक जनरेटर मैट्रिक्स दिया है 6,3, एक जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ है 6,3, और जी जनरेटर मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन 1 1 0 0 1 1 1 1 1, ये दिया हुआ जनरेटर मैट्रिक्स। और उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, n कॉमा के 6,3। दे आर आस्किंग, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट फाइंड ऑल पॉसिबल कोडवर्ड। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल कोडवर्ड। सेकंड प्रॉब्लम है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस एमंग ऑल कोडवर्ड, सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। फोर्थ है find the received code, find the syndrome when received code word is given as 0101111। रिसीव कोड वर्ड दिया हुआ है, आपको सिंड्रोम फाइंड करना है, तो आपको देखना है कि रिसीव कोड वर्ड सही है कि नहीं। सो प्रॉब्लम इज क्लियर, शुड आई मूव टू हाउ टू सॉल्व इट, शुड आई मूव टू द अदर पार्ट, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आगे बढ़े। ओके, सो सबसे पहले हमको दिया हुआ है 6,3, 6,3 आपको दिया हुआ है, विच इज n कॉमा k। तो n कितना है यहाँ पे 6 है, k कितना है 3 है, मतलब 6, पूरा टोटल 6 है बिट, और 3 बिट का ही मैसेज है इसमें। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रॉब्लम में देखिए आप दिया हुआ है फाइंड ऑल द पॉसिबल कोडवर्ड्स। तो पॉसिबल कोडवर्ड का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू m इंटू जी। जनरेटर मैट्रिक्स हमको दी हुई है, m निकालना है, तो m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू 2 के पावर k, k कितना है 3, 2 के पावर 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। अब देखिए c इक्वल टू 8, 2 के पावर 3 है, तो ये क्या हो गया m1 m2 m3 और इंटू जी। यही बस करना है हमको, c निकालना है पहले क्वेश्चन में, तो हम क्या कर दिए m1 m2 m3, क्योंकि 3 बिट का मैसेज है, इंटू जी। अब देखिए m1 m2 m3 कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 पहला बिट है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m1। फिर सेकंड पोजीशन पे 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया m2। थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया m3। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, फिर यहाँ 1 है, तो क्या लिखा मैंने m1 एक्सॉर m3। फिर यहाँ देखिए ऐसे लाइन बना देता हूँ, आपको क्लियर होगा। फिर यहाँ देखिए तीनों पे 1 है, तो क्या लिख दिया m1 एक्सॉर m2 एक्सॉर m3। फिर यहाँ देखो 2 और 3 पे है, तो m2 एक्सॉर m3। कितना 8 कॉम्बिनेशन बोला था, 8 कॉम्बिनेशन निकालना है अपने को। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ये यही अगर ये लिखने आ गया तो ये पूरा हो गया पहला पार्ट।
ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? फिर से बताऊं आपको? शुड आई टेल यू वन मोर टाइम हाउ आई हैव रिटन दिस? ओके, आई विल रिपीट. सो सी, प्रॉब्लम ऐसे दिया हुआ था. देखो, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इसके बाद से क्या था? 1 1 0, देन 0 1 1, देन 1 1 1. सो प्लीज सी हियर. सो फर्स्ट यहाँ बस अपने को 1 देखना है. यहाँ पे क्या है? 1, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने M1 फर्स्ट पोजीशन पे. फिर देखो सेकंड, ये आइडेंटिटी हो गया, ये पैरिटी हो गया. आपको दिख रहा होगा आइडेंटिटी मैट वर्टिकल है. सो फिर सेकंड पोजीशन पे 1 है तो यहाँ M2 डाल दिया. थर्ड पोजीशन पे 1 है तो यहाँ M3 डाल दिया. अब देखो यहाँ पे 1 कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड पे. तो क्या लिखा? M1 एक्सॉर M3. यहाँ 1 कहाँ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो क्या लिखा? M1 एक्सॉर M2 एक्सॉर M3. फिर यहाँ पे क्या है? सेकंड और थर्ड पे. तो क्या किया मैंने? M2 एक्सॉर M3. नाउ इज इट क्लियर? बताइए, आगे बढ़ते हैं. ओके. सो अगर ये हम सब जानते हैं ये 3 फॉर्म है तो यहाँ क्या डाल देंगे? 4 0 4 1, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा. यहाँ 2 0 2 1, देन 2 0 2 1. यहाँ पे क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1. ये हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे. 8421, तो यहाँ पे अगर 4 होता है, M4 तक होता तो क्या हो? 8421 कर देते. M3 तक है तो 4 2 1, मतलब 4 0 4 1. फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1. सो 4 2 1. इफ M4 तक होता तो 8421 लगाते. 8 0 8 1. अब देखिए M1 एक्सॉर M3 करना है अपने को. मतलब ये M1 ये हो गया, M3 ये हो गया. 0 एक्सॉर 0 दोनों सेम है तो क्या होगा? 0. देन M1 एक्सॉर M3 ये पूरा भरना है इस टेबल को. देन 0 एक्सॉर 1 डिफरेंट है तो क्या होगा? 1. देन 0 एक्सॉर 0 0. 0 एक्सॉर 1 1. 1 एक्सॉर 0 1. 1 एक्सॉर 1. देन या 1 एक्सॉर 1 0. 1 एक्सॉर 0 1. 1 एक्सॉर 1 0. ये लास्ट में 1 और 0 आएगा. ये समझ में आया आपको? एक्सॉर में क्या करते हैं? अगर सेम होगा, 0 0 होगा तो 0 हो गया. डिफरेंट होगा तो 1 हो गया. 1 0 होगा तो 1 हो गया. 1 1 हो गया तो 0 हो गया. यही मैंने किया है बस. इसका इससे एक्सॉर कर दिया है. तो 0 और 0, व्हेन वी विल डू एक्सॉर बिटवीन 0 एंड 0, व्हाट वी विल गेट? 0. 0 एक्सॉर 1, व्हाट वी विल गेट? 1. 0 एक्सॉर 0 0. 0 एक्सॉर 1 1. 1 एक्सॉर 0 1. 1 एक्सॉर 1 0. देन 1 एक्सॉर 0 1. then 1 एक्सॉर 1, then लास्ट में 0. so is this clear? so now what we will do? M2 XOR M3. so M2 XOR M3 मतलब इन दोनों को XOR करेंगे. तो M2 0 XOR 0, इसके बाद ये तीनों भर लेंगे. या तो आप इसको भी कर सकते हो डायरेक्ट. अब तीनों को XOR करो आप. 0 XOR 0 0, देन वन मोर 0 XOR 0. अगर उसका रिजल्ट क्या है? 0. फिर 0 को XOR 0 से करेंगे तो 0. वैसे ही 0 XOR 0 0, फिर 0 XOR वही रिजल्ट 1 से करेंगे XOR तो कितना हो जाएगा? 1. 0 XOR 1 1. so I one thing I'll do, I'll make it in a proper way. एक टेबल अच्छे से बनाता हूँ. आप अपने पेपर पेन निकालिए और उसको पूरा करिए, भरिए इसको. पहला पार्ट क्लियर हो गया. पहला क्वेश्चन होते ही सारा क्वेश्चन हो गया. देखिए बहुत सिंपल है. पहले मैं यहाँ प्रॉब्लम लिख देता हूँ. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा सिंपल है. ये क्या हो गया? 1 0 0. यही प्रॉब्लम था अपना. 0 1 0 0 0 1. और ऐसे कोई आपको बताएगा भी नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ. 0 1 1 1 1 1. So this is the problem. So what I have told you, I have to make it. So we will make the table. So what I'll write here? M1 M2 M3. Now you can see 1 and 3. So M1 XOR M3. Then 1 2 3. So what I'll write? M1 XOR M2 XOR M3. Then 2 and 3. So M2 XOR M3. So now we will apply 4 to 1 combination. So 4 2 1 means 4 0 4 1. Then 2 0 2 1 2 0 2 1. So then 0 1 0 1 0 1 0 1. So I'll make this line so doubt will be not there. So please tell यहाँ तक आपको क्लियर है क्या किया मैंने?
आगे बढ़े। So this question will come into your paper for 8 to 10 marks. Definitely you can see a previous year paper. So अब क्या करना है अपने को, M1 XOR M3 करना है। तो 0 XOR 0 हमें ये हो गया टेबल। 0 XOR 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 XOR 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 XOR 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 XOR 1 कितना होता है, 0 होता है। अगर सेम बिट है तो 0, अगर एक भी बिट डिफर करेगा तो 1 आएगा। अगर दोनों सेम है तो 0 आएगा आउटपुट। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो कैसे भरना है टेबल। अब टेबल भरना बहुत आसान है, पहला पार्ट अब तो क्लियर हो गया। अब देखो M1 और M3 का XOR करना है, मीन्स 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 1 0, 1 XOR 0 0, 1 XOR 1 0. This will be 1, I think. This will be 1. 1 XOR 0 1 1. अब बताइए ये M1 XOR M3, is there any doubt in M1 XOR M3? Should I tell one more time? प्लीज टेल, ईमानदारी से बताओ ताकि आपके लिए ही फायदा होगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो प्लीज ट्राई टू फिल दिस टेबल एंड दिस टेबल बाय योरसेल्फ। सो फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ओवर। हर पार्ट का दो दो नंबर है, तो आपका 8 नंबर, 8 या 10 नंबर में आएगा। सो प्लीज फिल दिस सेकंड एंड थर्ड टेबल बाय योरसेल्फ। अब देखिए M1 XOR M3 आपको आउटपुट पता चल गया है। अब XOR M2 करना है, ये आपको पता है, तो M2 से XOR कर दो। फिर 0 XOR, इसको देखो आप, 0 XOR 0 कितना होगा, 0। 1 XOR 0 1, ये आउटपुट हमको पता है, इसका XOR M2 से करना है तो तीनों हो जाएगा। नाउ 0 XOR 1, so what you will get 1, 1 XOR 1 you will get 0, 0 XOR 1 you will get 1, 0 XOR 0 you will get 0, 1 XOR 1 0, 1 XOR 0 1। नाउ दिस टेबल वी विल फिल M2 XOR M3, तो इन दोनों का XOR करना है, इन दोनों का करना है। तो 0 XOR 0 0, then 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 1 0, 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 1 0। So ये हो गया टेबल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फाइंड ऑल द पॉसिबल कोड वर्ड। सो फॉर सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड यू विल इजिली गेट 3 नंबर और 4 नंबर फॉर दिस पार्ट। अब मुझे बताओ आप किस पार्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, ये फिर से बताऊं मैं, या आपको क्लियर है? देखो ITC आई एम वेरी okay, so I think if it is clear then no point. So now we have to calculate, the second is minimum distance. So now I'll tell you how to calculate minimum distance. So यहीं पे कर देते हैं। ये हो गया था अपना M2 XOR M3, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट इज डी मिन। तो देखिए मिनिमम के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड पार्ट कितना आसान है। आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट देखना है हर रो में। तो आप इसमें देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट कितना है, जीरो, एक भी नहीं है, वन एक भी नहीं। इसमें देखो 1 2 3 4, सो आई राइट हियर 4, देन 1 2 3, I write here 3. In the third part, 1 2 3, I write 3. The fourth, 1 2 3, I'll write 3. After this, 1 2 3, I'll write 3. Then 1 2 3 4 4, then 1 2 3 4 4। तो मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया। 3, सब इन दोनों में मिनिमम कितना हो गया, क्योंकि 3 4 बार है, और 3 और 4 को ही देखेंगे क्योंकि ये लोग ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। इन दोनों 3 और 4 में मिनिमम क्या हो गया, 3। तो डी मीन इक्वल टू, आंसर फॉर सेकंड पार्ट इज डी मीन इक्वल टू 3, डी मीन इक्वल टू 3। यहाँ से देख लेंगे 3 4 बार है, 4 3 बार है, पर 3 और 4 में मिनिमम कौन सा है, 3 है, तो डी मीन कितना हो गया। सेकंड पार्ट आंसर इज डी मीन इक्वल टू 3। So what is the second part answer? I write here d min equal to 3. So you can see here, because you have to see number of non-zero component. So number of non-zero component is, in the first row you will see 0, कोई 1 नहीं है। सेकंड रो में 4 1 है, लिटिल 4। थर्ड में 3 है, 3 3 है, 3 है, 3 है, 4 4। 3 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 और 4 में मिनिमम क्या है, हमको मिनिमम हैविंग डिस्टेंस निकालना है, डी मीन इक्वल टू 3। सो इज दिस क्लियर हाउ आई हैव कैलकुलेटेड डी मीन? शुड आई मूव टू द थर्ड पार्ट?
देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम करना है, थर्ड पार्ट में बढ़े, एरर डिटेक्शन करेक्शन। Okay, so see how we will calculate error detection. So I have already told you error detection, which is S, that is dmin minus 1. तो कितना हो गया 3 minus 1, dmin minus 1 equal to 2. 2 error can be detected. 2 error can be detected, मतलब इस कोड में 2 error है। अब बी पार्ट क्या है, error correction। तो डीमीन ऑड है, डीमीन 3 है, डीमीन माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, देन 2/2 इक्वल टू 1। 1 एरर कैन बी करेक्टेड। 2 एरर को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, पर किसी एक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट we have done with the third part. Is this clear? Third part. Should I move to the fourth? Should I move to the fourth? Okay, so see, so this is the third part we have done with. Now I am moving in the fourth part. If you can see, linear block codes are very important. So आपको किसी भी जगह पे दिक्कत होगा आप बता देना मुझे। तो फोर्थ पार्ट क्या निकालना है अपने को, रिसीव्ड कोड वर्ड पता करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन सा जनरेटर मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ था वो कैसा था। ये जनरेटर मैट्रिक्स यही था ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू 1 1 0 0 1 1 1 1 1। ये जी क्या दिया हुआ है, पहले आइडेंटिटी दिया हुआ है, फिर पैरिटी दिया हुआ है। तो अब हमको डिटेक्शन पार्ट निकालना है जो मैंने बताया था। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हैच मैट्रिक्स। हैच मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर जी आई इज टू पी के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इंटू आई। तो अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस चीज का ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 1 0 का ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 1 0 0 1 1, देन 1 1 1 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर जनरेटर मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिया होगा तो एच मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इंटू आई, ये मैंने बताया था। अब क्या निकालना है हमको, सिंड्रोम। तो सिंड्रोम इक्वल आर इंटू एच ट्रांसपोज। ये तो एच मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका एच ट्रांसपोज क्या होगा, इस चीज का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो भी हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल में लिख देंगे तो ये क्या हो गया, 1 0 1 1 0 0, देन 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1। बस ये इसके बाद लास्ट पार्ट है। तो प्लीज टेल, इज दिस क्लियर हाउ आई हैव डन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट सेक्शन में है हम लोग, कैसे निकाला मैंने इसको। देखिए सबसे पहले जी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है आई इंटू पी के फॉर्म में। मैंने क्या बोला था, हैच मैट्रिक्स निकालना है। तो हैच मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, पी ट्रांसपोज इंटू आई। इसका ट्रांसपोज ले लिया हम लोगों ने। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 1 0 को ऐसे लिख दिया, 0 0 1 को ऐसे लिख दिया, 0 1 इसको ऐसे लिख दिया, इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी है हमारा, सेम चीज यहाँ उतार दिया। फिर हमको क्या निकालना था, सिंड्रोम। तो एस इक्वल टू आर इंटू एच ट्रांसपोज। तो एच ट्रांसपोज इस सबका ट्रांसपोज करना है, तो ये हो गया। अब लास्ट पार्ट देखिए, निकालना है हमको, लास्ट चेक करना है कि सही है या गलत है। तो लास्ट सेक्शन देखिए कैसे करते हैं। राइट हियर, सो syndrome equal to r into h transpose, so we have to calculate syndrome. So what was the received code given to us, 0 1 0 1 1 1, this was the received code। h transpose क्या निकाला है हम लोगों ने यहाँ से, what we have calculated from here, 1 1 0 1 1 0, then 0 1 1 0 1 1, third is 1 triple 1 triple 1, fourth is 1 0 0 1 0 0, fifth is 0 0 1 0 0 0 1 0। बता रहा हूँ हमेशा, एक सेकंड बता रहा हूँ, 0 1 0 0 0 1 0 0 1। तो हमेशा इन द क्वेश्चन ओनली आई हैव गिवन यू दैट फाइंड द सिंड्रोम व्हेन द रिसीव्ड कोड वर्ड इज, द फोर्थ पार्ट क्वेश्चन था, फाइंड द सिंड्रोम, फाइंड द सिंड्रोम when the received code word is, when the received code word is r equal to 0 1 0 triple 1, in the question itself I have given, so from question I only have taken. So what we are early we are knowing that formula for syndrome is s equal to r into h transpose. So r was given this,
एंड दिस एस ट्रांसपोज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा या कोई नहीं बताएगा भी। अब देखो क्या करना है, अपने को वन मार्क करना है। कहाँ का वन है? वन एक यहाँ पे है। देखिए, बहुत शॉर्टकट, बहुत बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, वन एक यहाँ पे है, एक वन यहाँ पे है, एक वन यहाँ पे है, एक वन यहाँ पे है। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो व्हाट आई विल राइट, इस पे सेकंड, इस पे वन, ये वाले को मार्क कर लेंगे। फिर कौन सा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। अब इन चारों के बीच में क्या करना है? एक्सओर ऑपरेशन करना है। मतलब इनको बाहर कर लो आप। जीरो, वन, 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 जीरो, 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 वन, जीरो, 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 वन। इन चारों के बीच में एक्सओर करना है अब अपने को। अगर जीरो निकल गया एस तो कोई एरर नहीं, अगर जीरो नहीं निकला तो एरर रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग। अब ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई करने का। जहां भी वन है उसको मार्क कर लो। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे क्या कर लिया? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इनका सिंड्रोम, अब इनका एक्सओर ऑपरेशन। वन जीरो वन, फिर वन जीरो वन, फिर वन वन जीरो। वैसे ही वन जीरो वन, फिर वन वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, देन जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन। तो एस कितना निकल रहा है? 100। मतलब इसमें एरर है। सो एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इसमें एरर है। सो इज दिस क्लियर? आप देखो, 100 इसमें है, ये 100 इसमें है। मतलब इस पे इस ब्लॉक में रहना चाहिए, इसमें, तभी हमको पता चलेगा। इसमें देखो, जो हमारा 100 निकला हुआ है, ये इसमें है, मतलब एरर है। और इसमें अगर इसमें आएगा इस ब्लॉक में, तभी सही होगा आपका। ये समझ में आया कैसे निकाला 100 मैंने? बस इसके बाद लास्ट स्टेप है, एक और स्टेप है, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, आई विल रिपीट इट, सो डोंट वरी। सो आई विल टेल यू वन मोर टाइम। So see, I have told you S equal to R into H transpose. So R कितना दिया हुआ है आपका? R दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 1 0 1 1। H ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है? H ट्रांसपोज दिया हुआ है आपका, कितना आया? 1 1 0 1 1 0 1 1 0। Then it came 0 1 1 0 1 1 0 1 1। Then other is 1 1 1। So I'll write here 1 1 1। Then other is 1 0 0 1 0 0। Other one is 0 1 0 0 1 0। Last one is 0 0 1 0 0 1। I'll write here 0 0 1। This is the, so now in the next step what you are going to do? मार्क वन। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, एक वन को मार्क कर लो। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। तो इस सेकंड पे, ये सेकंड हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इनको बाहर कर दो। 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1। इसका सबका एक्सओर ले लो। सबका एक्सओर जैसे हम जानते ही हैं, सबका एक्सओर लोगे तो आप 100 आएगा। ये 100 यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। एस इक्वल टू, एस अगर जीरो आया था तो एरर नहीं था। एस कुछ जीरो के अलावा कुछ भी आ गया, मतलब एरर इज देयर। नाउ इट इज क्लियर हाउ आई गॉट एस। ओके, सो लास्ट स्टेप देखिए। अब कैसे निकालते हैं रिसीव फॉरवर्ड, सही है कि गलत है। इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ इट वाज गिवन एज 6,3 मैट्रिक्स। तो देखो, इसको, इसी चीज को वापस से बना लो यहाँ पे। इसी चीज को वापस से बना लीजिए यहाँ पे। 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 देन 1 0 0 1 0 0 0 1 0। मैं वापस से उसको उतार रहा हूँ, फिर 0 0 1। अब हम एरर फाइंड करने जा रहे हैं, एरर निकालने जा रहे हैं। एरर, क्या एरर था? तो ये वापस से बना लिए। फिर इसके आगे 6,3 था, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो बस। 1 1 2 3 4 5 6। 0 1 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 ये 6,3 इसके सामने मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और हमने निकाला था कि इस 100 में एरर है, यहाँ पे 100 में एरर है। इसको आप बाहर कर दो, इस वाले पूरे बिट को 0 0 0 1 0 0 और जो रिसीव कोड वर्ड था, हमारा रिसीव कोड वर्ड था क्या, 0 1 0 ट्रिपल 1, इससे एक्सॉर कर दो आप। तो आप क्या करोगे, एक्सॉर करोगे तो क्या होगा, 1 0 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0 0 0 का 0 1 0 का 1 0 0 का 0। तो आप देखो रिसीव कोडवर्ड क्वेश्चन में ये था और आपको फाइनल क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये चीजें मिल रही। मतलब आप देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, वन एरर कैन बी करेक्टेड, मतलब ये एरर था, ये दिस वन, इस वन की जगह पे क्या होना चाहिए था, जीरो, अभी हमको जीरो मिल गया, जीरो मिल गया। इस वन की जगह पे जीरो होना चाहिए था, हम लोगों ने निकाला था ना कि एस वन एरर कैन बी करेक्टेड, टू कैन बी करेक्टेड बट वन ओनली वन कैन बी करेक्टेड। तो आप रिसीव कोडवर्ड प्रॉब्लम में था आपका 0 1 0 ट्रिपल 1। अभी क्या करेक्ट करके बनाया हम लोगों ने, करेक्शन क्या हुआ हमारा, करेक्शन ये हुआ 0 1 0 0 1 1। So this was the error which we have corrected. So this was the error which we have corrected. So this is the problem, like this we have to do. So please tell me अगर कोई दिक्कत है, मैं फिर से बताऊं आपको ये स्टेप कैसे किया, ये प्रॉब्लम खत्म। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। और आप कहीं भी जाओगे ब्लॉक कोड्स के बारे में आपसे पूछेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा। और आप कुछ भी इसमें रटना नहीं, जो स्टेप समझाया उसको आप करो, यू विल इजीली स्कोर 10 to 15 मार्क्स फ्रॉम हियर। सो सारा आप आईटी 6 आईटी में बात करना, वो लोग 10 से 15 प्रॉब्लम लगा चुके हैं, हम लोग साइक्लिक कोड खत्म करने वाले हैं वहां पे। सो एंड दे आर वेरी इंटरेस्ट, दे हैव शोन वेरी इंटरेस्ट इन दिस ब्लॉक कोड, सो आई एम टीचिंग यू। क्योंकि आप ये ऐसा आपको दोबारा कोई ऐसा बताएगा भी नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या बताएंगे, अभी आप पढ़ना आगे। राइट साइड वाले कुछ नहीं था, कॉमा एक बार सिंड्रोम से रिपीट कर देता हूं मैं। देखो सिंड्रोम क्या था, आर इंटू एच ट्रांसपोज। तो हमारा ये आर दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल लिया। फिर क्या कर दिया, वन मार्क कर दिया, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो यहाँ से वन, इनका सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इन चारों को बाहर कर दिया। चारों को बाहर करके इनका एक्सॉर ले लिया। एक्सॉर लेने पे कितना आएगा, 100 आ गया यहाँ पे। मतलब एस की वैल्यू 100 आ गई तो कोई ना कोई एरर है इसमें। अगर एस की वैल्यू 0 आ जाती तो एरर नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर इसी चीज को हम इसी को, इसी जो भी एच में एच ट्रांसपोज था उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद से इसके सामने इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 6,3 का, मतलब 6,3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखता है, डायगोनली वन चेंज होता जाता है, पहले इस पोजीशन पे था, फिर सेकंड पोजीशन पे गया, फिर थर्ड पोजीशन पे गया, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे। तो पहला 6,3 था हमारा एन कॉमा के, तो इसलिए मैंने इसके इसके सामने सामने 6,3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। तो 100 के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ रही है, ये आ रही है, ये। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इस चीज को, ये हो गया 100 के सामने वाला। और जो रिसीव कोडवर्ड था, मैं फिर से इसको रिमूव करके बताता हूँ। 100 हम लोगों ने निकाला था, एस की वैल्यू 100, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। जो 100 के सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या लिख दिया, 0 0 0 1 0 0। फिर रिसीव कोडवर्ड क्या था हमारा, 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगा। रिसीव कोडवर्ड था हमारा 0 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1। अब इन दोनों के बीच में एक्सॉर कर दो, आप कुछ नहीं करना है, 1 1 0 0 1 0। तो आप देखोगे रिसीव कोडवर्ड में यहाँ पे 1 था, अभी आपका यहाँ पे 0 आ गया है। तो मतलब इस बिट में एरर था। ये बिट रिसीवर को यहाँ पे 0 रिसीव होना चाहिए था, पर उसको क्या रिसीव हुआ, 1 रिसीव हुआ। सो वन एरर कैन बी करेक्टेड। सो आप टेंशन मत लो, इस वीक में एक दो क्लासेस और लगा के मैं आपका ब्लॉक कोड बहुत बढ़िया कर दूंगा, जहां कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इस पे अगर 2-3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ इज इट ओके? Yes, sir. Okay. So the time is going to end. So if you are interested, we can put one more class tomorrow, and we will solve 2 to 3 problems. And I assure you that you can score 10 to 15 मार्क्स इन ब्लॉक कोड्स। आप एक बार, आप जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप जाके अपना आईटीसी का पेपर निकालना और खोलना, और उसमें देखना कि ब्लॉक कोड का कितना क्वेश्चन आता है। और यही मेथड है, इससे मतलब इससे आसान और कोई मेथड है ही नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड।
So when should I put the next class? So please tell. So so when will be our next schedule? So if everybody is interested in tomorrow, then only we will put tomorrow. So Thursday. So I also so we will put on Thursday, and we will if you are interested in block code, we will study block code or we will study antenna. So it's depend on you. So one problem I will give you. So please try to solve it. 1 0 0 0 1 0 generator matrix is given as like 0 0 1, and this is given as 1 1 0 1 1 0 0 1 1, और सब कुछ वैसे ही निकालना है. रिसीव कोड वर्ड दिया हुआ है. रिसीव कोड वर्ड इज 1 0 1 1 0 1. तो इज इट फाइंड सिंड्रोम, इज इट वैलिड और नॉट, इज इट वैलिड और नॉट, सब कुछ निकालना है वैसे ही, पांचों का पांचों चीज, और साथ में ये भी, लास्ट में ये भी. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, एंड आई विल वी विल मीट ऑन. अगर कल टाइम होगा तो कल मिलेंगे, नहीं तो थर्सडे को मिलेंगे. आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर 2 hours, so it's not an issue. And if you are interested in this, we will solve 2 or 3 problem on this, or we will study antenna. So because madam was not available, so I thought to teach you block codes, because that is very important for your paper purpose. So Aditi is there. Okay, so Aditi, please send me the attendance. We will meet on Thursday, most probably on Thursday. If I have time on tomorrow, I'll inform you. 8 बजे तक आपको मैसेज मिल जाएगा, 8 साढ़े 8 तक. So we'll meet on tomorrow or day after tomorrow. So I'll tell you. So this is all about today. Thank you everyone.